Hello Joe, let's read the given question. The question says, in a potentiometer circuit, two wires of same material of resistivity rho, one of radius of cross section A and other of radius of cross section 2A are joined in series. They are of length L and 2L respectively. This combination acts as a potentiometer wire of length 3L. The EMF of the cell in the primary circuit is E and internal resistance is rho L upon 2 pi a square. This cell is connected to the potentiometer wire by a conducting wire of negligible resistance with positive terminal of the cell connected to one end, call it A, and of longer wire. The negative terminal of the cell is connected to one end of the smaller wire. The remaining ends of the two wires are joined together. We need to find the length measured from A where EM cell of EMF E by 2 will balance. So to understand this question, we need to understand about the concept of potentiometer principle. So according to potentiometer principle, we can say let's suppose we have a potentiometer wire जो कि एक बैटरी सोर्स से कनेक्टेड है, राइट, कुछ इस तरीके से. एंड दिस पोटेंशियोमीटर वायर इज हैविंग अ लेंथ L और उसको हमने नाम दे दिया AB. एंड दिस इज द EMF ऑफ द बैटरी दैट इज बीन कनेक्टेड, या फिर हम उसको कह देंगे पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस सप्लाइड बाय दिस बैटरी इज V. सो ये हो जाएगा पोटेंशियल V दैट इज एट हायर टर्मिनल एंड zero potential will be at point B. So from this we can see अगर हम कहें कि L लेंथ में पोटेंशियल ड्रॉप पॉसिबल विल बी V, that is the battery का जो भी potential होगा. So in unit length it will be V by L, and this V by L is called as the potential gradient K. Now if we wish to find the potential drop across this length X, so what we can do is इस point को अगर हम नाम दे दें C, so potential across AC length can be given by the expression K into X, where K is V by L. So this is what the principle of potentiometer wire we need to keep in mind. Apart from this we can have the relation of resistance. So resistance को हम क्या लिख सकते हैं? Resistance is directly proportional to length and it is inversely proportional to area of cross section. So finally we can have the result R equals to rho L by A, where rho is specific resistance या फिर हम इसको resistivity भी कहते हैं. Now we can see from the situation further, we can write this will be the situation. And also apart from it, series and parallel combination के regarding we need to have a basic understanding. For series we know के resistance R equivalent can be calculated just by summing it up R1 R2 for series combination. अगर दो resistance series में है, so they will be in series when same amount of current will be flowing through each, right. So जब भी हो हम कहेंगे series में and equivalent calculate करते हैं हम R1 plus R2 से. Similarly अगर हम parallel की बात करें, so R equivalent can be calculated upon 1 over R equivalent will be equals to 1 by R1 plus 1 by R2 and so on, right. So ये है हमारा parallel combination का formula. अब यहाँ पे we need to understand potential parallel में जो potential difference होता है across the resistance, that is V is same. जैसे series में current same होता है, current में I same होता है basically, तो वैसे ही potential difference that is V same होता है when the resistance are connected in parallel. So these are basic few points that we need to keep in mind. अब using this result we will try to analyze the situation. We will use the basic ratio and proportion concept to solve this question. So वो basically we know that concept. So like let's try to understand this. So हमारे पास let's say एक battery source connected है of value of EMF E, जो कि E given है क्वेश्चन में, या उसको एप्सिलॉन रीड कर सकते हैं हम. एंड दिस इज कनेक्टेड टू अ पोटेंशियोमीटर वायर. अब इस वायर, ये जो वायर है ये बेसिकली इसका जो ओवरऑल लेंथ है दैट इज टोटल लेंथ इट इज 3L. ये बना है दो वायर से, राइट. इसको अगर हम नाम दे दें A, क्योंकि पॉजिटिव टर्मिनल A पे कनेक्टेड है एंड स्मॉलर वायर का जो कनेक्शन है वो B पे नेगेटिव टर्मिनल पे कनेक्टेड है. एंड दिस इज द सिचुएशन वी कैन से, इस तरीके से कनेक्शन है. ये लेंथ 2L है और इसका रेडियस ऑफ क्रॉस सेक्शन इज 2A और यहाँ ये लेंथ A है, इसका रेडियस ऑफ क्रॉस सेक्शन इज A. इस पॉइंट को हम नाम दे देते हैं M, ठीक है. तो ये AM और MB और एक इंटरनल रेजिस्टेंस भी है इस बैटरी का, तो इसको हम दे देते हैं स्मॉल r. So this is what the situation we have been given with.
अगर हम ध्यान से देखें सो इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन है रो एल अपॉन 2 पाई a स्क्वायर, राइट। सो इसका रेजिस्टेंस हम मान लेते हैं लेट्स से R1, इसका रेजिस्टेंस हम मान लेते हैं R2। सो R1 R2 की वैल्यू हम कैलकुलेट कर सकते हैं। R1 कैन बी रिटन एज रो इनटू लेंथ गिवन है 2L डिवाइडेड बाय पाई R स्क्वायर, R इज गिवन एज 2a, सो ये हो जाएगा 4 पाई a स्क्वायर। सिमिलरली वी कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ R2, तो ये हो जाएगा रो L अपॉन पाई a स्क्वायर, right? So from here we can see कि this is how we can calculate the value of resistances, ठीक। अब यहाँ से अगर हम रेजिस्टेंस के रेशियोज देखें, सो ये तो वैल्यू को अगर थोड़ा सा सॉल्व कर ले तो ये हो जाएगा रो एल अपॉन 2 पाई a स्क्वायर, राइट। सो वी कैन सी R1 इज टू स्मॉल r इज टू R2। अगर इस तरीके से हम रेशियो देखें सो वी कैन से 1:1 इज टू 2, इस तरीके का रेशियो हमें मिल रहा है, ठीक है ना। सो वी कैन सी कि रेजिस्टेंस इन दोनों के हाफ है, कम है बेसिकली। R1 और स्मॉल r का जो रेजिस्टेंस है वो कम है, ज़्यादा रेजिस्टेंस किसका है, R2 का है, राइट। सो सिंस अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि तीनों सीरीज में कनेक्टेड है, तो सीरीज में जब कनेक्शन होगा तो करंट सेम होगा तीनों के अक्रॉस, राइट। सो फॉर सीरीज कनेक्शन वी नो, फॉर सीरीज कनेक्शन तीनों वायर तीनों जो सेक्शन है स्मॉल r कैपिटल R1 R2 सीरीज में वी नो के I सेम होगा तीनों के अक्रॉस, I is same, so that means V will be proportional to R. by Ohm's law we are writing V is proportional to R. अब यहाँ से we can see, we can accordingly write V1, अगर हम मान ले के potential across R1 is V1 and potential across R2 is V2 और इसके across हम मान ले के VR है small, राइट। सो यहाँ पे हम देख सकते हैं व्हाट वी कैन राइट इज V1 is to VR is to V2, this can be also having the same ratio, right। अब इन रेशियो के हिसाब से वी हैव टू डिवाइड द वैल्यू ऑफ EMF, ये जो E है कैपिटल E, ये इन रेशियो के हिसाब से डिवाइड होगा। सो वी कैन सी देयरफॉर E1 अक्रॉस मान लेते हैं कि जो पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस R1 है वो E1 है, इसके अक्रॉस E2 है और इसके अक्रॉस ER है, राइट। सो हम देख सकते हैं कि हमें चाहिए E1 और E2। सो E1 जो रेजिस्टेंस जो पोटेंशियल ड्रॉप मिलेगा E1 विल बी इक्वल्स टू, टोटल अगर हम देखें तो इट विल बी 4, राइट। सो इसका जो V1 है वो है 1 और ये इसका डबल होना चाहिए, V2 पे जो पोटेंशियल होगा वो डबल होगा बेसिकली, और V1 और VR पे इट विल बी जस्ट, इट कैन बी रिटन एज 1/4 ऑफ E, राइट। टोटल 4 है, उसका 1/4 इज गोइंग विथ V1। सिमिलरली E2 की अगर हम बात करें तो सेम रिजल्ट आएगा, 1/4 विल बी गोइंग विथ E2 एंड फाइनली ER के पास क्या आ रहा है अगर हम केयरफुली देखें, सो सॉरी V2 के ये ER है सॉरी, सो E2 के पास क्या आ रहा है, इट इज कमिंग आउट टू बी E/2, 1/2 ऑफ E, राइट। सो इस तरीके से वी हैव द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पोटेंशियल ड्रॉप। अब फाइनली वी हैव द वैल्यूज ऑफ पोटेंशियल ड्रॉप, यानी कि E1 के अक्रॉस आ रहा है पोटेंशियल ड्रॉप E/4, हमें बैलेंस क्या करना है E/2। तो अब लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस फर्दर। हमें E1 E2 ER मिल चुका है, सो वी कैन हैव ये हमारा कुछ इस तरीके का फिगर था ये, राइट। यहाँ पे ये हमारा पॉइंट था M, दिस इज A, दिस इज B। अब जस्ट हम यहाँ पे पोटेंशियल्स लिख रहे हैं कि यहाँ पे जो पोटेंशियल मिला वो हमें मिला E/4, यहाँ पे जो हमें पोटेंशियल मिला वो मिला E/2 और इसके अक्रॉस जो मिला वो अगेन हमें मिला E/4 और ये टोटल पोटेंशियल था E, राइट। सो फ्रॉम दिस सिचुएशन वी कैन सी कि अगर हमने एक एक्सटर्नल बैटरी सोर्स यहाँ से कनेक्ट की है, राइट। सो हमसे बोला गया है कि द लेंथ मेजर फ्रॉम पॉइंट A वेयर सेल ऑफ EMF E2 विल बी बैलेंस।
सो यहाँ से अगर हम गैल्वेनोमीटर लगाएं एक, और यहाँ से हम नल पॉइंट चेक करें जॉकीज के द्वारा, सो वी कैन से, और इसका ईएमएफ हमें E/2 गिवन है। सो ये नल पॉइंट कहाँ मिलेगा, दैट इज व्हाट द क्वेश्चन इज, ये ए बी वायर पे ये कहाँ मिलेगा। सो अब ए एम तक अगर हम देखें, सो इट विल बी जस्ट E/4। सो E/4 हमें और जाना पड़ेगा आगे, राइट। सो वी कैन सी फ्रॉम हियर, we can write since up to point M, up to point M, potential is E/4, therefore to balance E/2 we have to consider ये पॉइंट को अगर हम नाम देते हैं n, सो लेंथ mn एंड विच इज इक्वल्स टू mb का हाफ, राइट। सिंस हमें पता है कि हमें E/2 बैलेंस करना है, m तक तो E/4 ही आ रहा है, सो E/4 और चाहिए हमें, सो वो mn देगा हमें, राइट। देयरफॉर वी कैन से लेंथ, बैलेंसिंग लेंथ हम इसको लिख देते हैं टू बी प्रिसाइज, बैलेंसिंग लेंथ विल बी इक्वल्स टू, एक तो a से m तक की लेंथ है 2l प्लस MB की लेंथ थी L, तो वो L/2 बेसिकली हमें उसकी लेंथ लेनी है, तो ये हो जाएगा 5L/2। सो दिस इज द आंसर टू द क्वेश्चन। आई होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन। ऑल द बेस्ट।